Praise the Lord and Jai Masiki. We are back here once again. And Mrs. Pereira, Daigo Pereira, and my daughter Carol Pereira, my son Brian Pereira. And we are back again on Family of Christ Ministry page. Friends, as you all know, today we have arranged from 1st of Jan. We have arranged for testimony sessions. So I thank God for giving us an opportunity to come here and glorify His name. And people of God, there is unlimited testimonies to share. But since time is the limit, I would like to share few testimonies. But before that, let's look upon the Lord in prayers. Heavenly Father, we thank you for today's day, Master. Thank you that today is 1st Jan 2021, and your amazing grace and abounding love that has kept us safe and sound. Thank you, Jesus. Thank you once again. Oh, you are a living God, you are a Messiah, you are an anointed one, Lord Jesus. Thank you for keeping all of us protected and keeping us hiding under your wings, Father God. Jesus, as we are here in the testimony session, Lord Jesus, I pray for my family and all the families that are going to come today to share the testimony, Lord God. Bless everyone, and I pray, Father, we give this entire session into your hand, Lord Jesus. Whatever I speak or whatever we sing, let it just be for your name's sake, Father. Thank you, Jesus. You increase and we decrease, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Master. I ask all this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Loving people of God, I just want to say one thing. In this past 12 months, in 2020, we have faced lots of ups and downs. We have seen the world changing. What hadn't to be stopped has stopped. What hadn't to be changed has changed. But one thing is for sure, God never changes. God of Abraham, God of Joseph and Isaac is the same. He's our God. He's the same yesterday, today and forever. Friends, I just want to tell you one thing, or I want to ask you one thing. Do you know why are we alive today? Or why are we still alive? There is one answer for it, and that is in the Word. Let's open our Bibles to Psalms 5 and verse 12, and it will answer our question that why are we alive today? Are we alive because our father or our mother is someone great? No. Or are we alive because are we great? No. Or are we alive because we are lords or we are very anointed? हम बहुत अभिषेक लोग हैं इसलिए हम जिंदा हैं? नहीं. आज हम जिंदा क्यों है इसका उत्तर वचन में है. आइए हम अपना शास्त्र खोलेंगे भजन संहिता का 5 और 12वां अध्याय 12वां वचन. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen, amen. वचन कहता है कि हम जो धर्मी लोग हैं, हमारे ऊपर क्या है? भलाई है. हमारे ऊपर हमारे इर्द गिर्द भलाई है. इसी कारण आज हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की भलाई है. His favor is upon us, and that is the reason we are alive. Friends, you know the Israelites 430 years they were in slavery in Egypt. But when God's favor came upon them, they had freedom from Pharaoh. It was not that they were someone great. ऐसे नहीं है कि वो लोग कोई महान लोग थे या कुछ अच्छी बातें उन्होंने किया. नहीं. प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की भलाई उनके ऊपर था. और आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदावन यीशु तेरी भलाई के कारण हमने 2020 को पार कर लिया और आज हम 2021 में हैं. मेरे प्रियो, आप तो जानते हो बहुत लोगों ने अपने प्रियो को खोया है. किसी ने बच्चों को खोया है, किसी ने माँ बाप को खोया है, किसी ने
पति पत्नी को खोया है, किसी ने अच्छे पड़ोसी को खोया है। बहुत ऐसे हमने देखे, लाखों लाखों लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली है और ये धरती में समा गए, पर आज हम जीवित हैं सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण, सिर्फ उसके दया के कारण और सिर्फ उसके फेवर, उसकी भलाई के कारण। मैं आगे मेरा टेस्टिमनी शुरुआत करने के पहले उस महान खुदा को, उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं, मेरा परिवार सुरक्षित है, हम सब ब्लेस्ड है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी धन्यवाद देना चाहते हो। यस, क्योंकि हमारा खुदा कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। हम भले ही अवफादार बनते हैं खुदा के साथ, कभी कभी सिचुएशंस में हम प्रभु को दोष देते हैं। कई कई ऐसे समय आता है कि हम प्रभु को नाम रखते हैं, फिर भी वो उसकी भलाई हमारे ऊपर रहता है, फिर भी वो हमसे वफादार रहता है। तो आइए, लेट्स वर्शिप हिम बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेजेस। यस, थैंक यू जीसस। आइए, shall we sing that song? जय जय प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया आमेन। प्रेम की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे नादान। प्रेम की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो, आनंद दो। प्रभु को महिमा मिले, जय हो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो, आनंद दो। थैंक यू जीसस। हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत लोगों ने नहीं देखा है। जिन्होंने गया 1 जनवरी 2020 मनाया है, उन्होंने ये साल नहीं देखा है। पर हम प्रभु के बच्चे, प्रभु के चुने हुए, आज हम ये दिन देख रहे हैं। और जैसे वचन में कहा है कि भजन संहिता के 1 से 2
27 वचन में लिखा है कि प्रभु के वर्ष कभी खत्म नहीं होंगे और हम उसके बच्चे होने के कारण हमारे वर्ष भी एक्सटेंड किए गए हैं, हमारे भी आयु आगे बढ़ाई गई है कि प्रभु का भलाई हमारे ऊपर है। His grace is anointing, His favor is upon us. Oh, thank you Jesus, thank you Lord। आइए उस गीत को गाएंगे, हमें आभारी रे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन। आइए इस गीत को गाएंगे, हमें आभारी। सही में प्रियो, हमें प्रभु को हर उस बात को आभार करना है। इस लॉकडाउन में हमने खाया पिया, अच्छे से रहे, इसके लिए प्रभु को हम आभारी करेंगे। थैंक यू जीसस। शायद से दैट सॉन्ग हमें आभारी दे। हमें आभारी, आभारी मान तो यीशुदा, हमें आभारी, आभारी मान तो यीशुदा, हमें आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा, आभारी 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 मान तो यीशुदा, अभी आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा, खाया ला पिया ला यीशु ने दिले, खाया ला पिया ला यीशु ने दिले, राहला सागा यीशु ने दिले, राहला सागा यीशु ने दिले, अभी आभारी, आभारी मान तो यीशुदा, अभी आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा, आभारी 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 मान तो यीशुदा, हमें आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया, हमें आभारी, आभारी मान तो यीशुदा, हमें आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा, आभारी 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 मान तो यीशुदा, हमें आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा। Thank you Jesus. Yes friends, it's really जैसे भी हमने आज प्रभु को आभारी मानते हैं, हमें चलता फिरता रखा, हमें मस्त रखा, तंदुरुस्त रखा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, सारी उन बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जीसस। और विश्वास करते हैं ये जैसा नया साल चालू हो गया है, इसमें प्रभु आप नए ब्लेसिंग्स को, नए अनुग्रह को, नए दया, न्यू मर्सीज एंड न्यू ग्रेस you are going to give us, Lord God. Thank you Jesus. Thank you Father. Holy Spirit, जैसे आइए हम आराधना में जाएंगे, जैसे आराधना में जाएंगे तो सारी बातों को याद करेंगे। ये 12 महीनों में, गए साल में सारी बातों को याद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु इतनी कठिनाई होने के बावजूद, इतनी परेशानी होने के बावजूद आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमें प्यार से भरा, हमें हमारी चिंता की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यूहन्ना का 12:18 कहता, यूहन्ना का 14:18 कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे पास रहूंगा।
धन्यवाद मेरे प्रभु आपके उस वादे के लिए। वो प्रभु जो वादा रखता है और अपने वादों को पूरा करता है, ऐसे खुदावन के आज हम आराधना करेंगे, बिकॉज ही इज अ वे मेकर। हो सकता है हम 2020 में भटक गए होंगे, हो सकता है हम गए साल में गलत काम किए होंगे, पर हमारा प्रभु हमें मार्ग दिखाएगा। He will make us walk on the right way, the way of righteousness. आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। जीसस, उस गीत को गाएंगे, तू प्यार का सागर। थैंक यू जीसस। डेफिनेटली ही इज प्यार का सागर। उसके जैसा कोई नहीं। उसका प्रेम का कोई नाप नहीं है। हम उसके प्यार का कोई वजन नहीं कर सकते। His love is unconditional love. उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। वो सिर्फ जानता है प्रेम करने। थैंक यू जीसस। शैल वी क्लोज आवर आईज? आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आराधना में खो जाएंगे, उसके महिमा में खो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। तू प्यार का
ये सारी सृष्टि का रचना हो गया प्रभु। आपके एक शब्द से हम बनाए गए खुदाबंद। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 है मेरे उद्धार करता। धन्यवाद कि आपने हमें चुना है आपका बेटा बनने के लिए, आपकी बेटी बनने के लिए। धन्यवाद कि आपने हम आपके हथेली पर हमको, हमारे चेहरे को, हमारे मुख को खोदा है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपके छूने से प्रभु जी लोग ही चंगा पाते हैं प्रभु जी। आपके छूने से, आपके कहने से हर परिस्थिति बदल जाती है प्रभु जी। हर मरी हुई परिस्थिति बदल जाती है प्रभु जी। हर लाजर जिलाया जाता है प्रभु जी। Thank you Jesus, thank you Lord God. Every dead situation turns into life. Thank you Master, thank you Jesus. प्रभु प्रार्थना करते, स्तुति आराधना को आपके वेदी पे चढ़ाते खुदा। इस समय को आपके आगे देते प्रभु। हम कुछ नहीं आपको दे सकते सिवाय धन्यवाद के खुदावन। It's only thanks, it's only thank you we can say Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father. Oh thank you Holy Spirit for everything Lord God. Thank you Lord Jesus, praise you, worship you. Thank you for your favor on us Lord God. Thank you for showing us this new year Father. ये नए साल दिखाने के लिए धन्यवाद। और कई साल आप हमें दिखाओगे, इसके लिए धन्यवाद। Thank you Father. ये सारी प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, as it's time for testimony, and as at the beginning of the session I said, मैंने जैसे बताया कि आज हम जीवित हैं, आज हम जो कुछ भी है वो प्रभु के मेहरबानी के, प्रभु के भलाई के कारण हम जीवित हैं। आगे भी बहुत कुछ बोलना है पर समय बहुत कम है, इसलिए मैं मेरे गवाहियों के साथ शुरुआत करती हूँ। प्रियो, तो गवाहियाँ तो बहुत है, प्रभु ने बहुत अद्भुत बातें की है इस लॉकडाउन में। आप तो सभी जानते हैं कि लॉकडाउन मार्च के महीने में शुरुआत हुई और अभी तक चल ही रहा है। मेरी सबसे पहली गवाही तो ये है, मार्च के महीने में जैसे मार्च के कुछ मेरे ख्याल से 23 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो 23 तारीख से सब कुछ रुक गया। मुंबई की स्थिति रुक गई, जो बातें बंद नहीं होनी चाहिए थे वो बातें बंद हो गई। आप तो जानते हैं मुंबई की लाइफलाइन इज ट्रेन रुक गया, सब कुछ रुक गई। एक्सक्यूज मी। ट्रेन रुक गई, मुंबई का जो इकोनॉमी वो गिर गया, सब कुछ थम गया। वायरस में लोग मरने लगे, कई लोगों की नौकरियां गई, यहाँ तक कि प्रभु के कितने बच्चों ने विश्वास छोड़ दिया, कलीसिया बंद हो गई, बहुत से जगह पर कलीसिया थम गया, बहुत से जगह पे जो अभी आज हम जैसे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन भी रुक गए। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम चल रहे हैं, कैमिंग ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री चल रही है, हमारा पेज चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम जैसे ये टेस्टिमनी गवाही का सेशन है, बहुत सी गवाहियाँ हैं पर मैं मेन गवाहियाँ शेयर करना चाहूँगी, प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहली गवाही मेरी ये है कि मार्च के महीने में जैसे हम ऑनलाइन सर्विस देख रहे थे पास्टर माइकल फर्नांडिस का, और भाई ने बताया, पास्टर ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर
you will receive money in your accounts. तो हमने उसे ग्रहण कर लिया, विश्वास से ग्रहण कर लिया। मैं और मेरा फैमिली, हम सब बच्चे और हम सब देख रहे थे ऑनलाइन, और हमने विश्वास कर लिया और ग्रहण कर लिया उस बात को। और ग्रहण करने के बाद हम भूल गए, उस बात को ही भूल गए। जैसे भाई ने कहा था कि यू रिसीव मिरेकल मनी इन योर अकाउंट, वो बात को हमने रिसीव किया और भूल गए। और 2 दिन बाद मेरी मैडम ने, मेरी स्कूल की मैडम, मेरी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे मैसेज सेंड किया कि शलाइन तुम्हारा अकाउंट नंबर सेंड करो। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई। शॉक करेंगे ना भाई, प्रिंसिपल मैडम अकाउंट नंबर मांग रही है। तो मैं थोड़ी सी सोच में, मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये बात बताया, तो मैंने पता नहीं क्या है, भेज दे। तो मैंने मेरा अकाउंट नंबर मैडम को सेंड कर दिया और मैडम ने कहा कि कोई तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालना चाहता है। तो मैंने मैडम को ओके कर दिया। अभी मैडम है ना, कुछ बोल नहीं सकते। और तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जानता है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानता है। लॉकडाउन में सब कुछ थम गया था, तो प्रभु जानता है कैसे अपने बच्चों को चलाना है, उसके बच्चों की क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ जानता है। और तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरी पहली गवाही है। दूसरी गवाही है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में मैं क्लासेस लेती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ। तो जैसे आप जानते हैं, फ़ीस क्लासेस में, मेरे ट्यूशन्स में फ़ीस जैसे मिलता है, तो मैंने मेरी वो एक फ़ीस, मेरे ट्यूशन का फ़ीस बाकी था। तो मैंने मेरे वो ट्यूशन के पेरेंट को कॉल किया और उनको बोला कि मेरा फ़ीस बाकी है, तो आप प्लीज़ मुझे सेंड करना मेरे अकाउंट में। तो वो बोलने लगे लॉकडाउन है, तुम आए नहीं ट्यूशन को। तो मैंने उनसे कहा कि सिचुएशन मैंने तो नहीं क्रिएट किया है, वो नेचुरल है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो वो बहस करने लगी, नहीं ऐसा कैसा, अब मैं पैसा नहीं दूंगी। तो मैंने कोई बहस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। खाली अंत में लेकिन मैंने एक वाक्य कहा, मेरा प्रभु बड़ा है। मैंने इतना ही कहा, मेरा प्रभु बड़ा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसने पलट के मुझे कहा, तेरा प्रभु महान है तो मेरा भी तो प्रभु महान है, बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, नो बात, नो प्रॉब्लम। वो मुसलमान पेरेंट है, उसने कहा हमारा अल्लाह भी बड़ा है। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, मैंने कुछ बहस नहीं किया और मैं वो बात को भूल गई। अप्रैल के महीने की बात है। अप्रैल गया, मई गया, जून गया और जुलाई के महीने में सडनली हम लोग प्रार्थना कर रहे थे शाम के टाइम 6:30 बजे ऐसा। और जैसे प्रार्थना ख़त्म हुआ, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ। मैं भूल गई किसने डाला, क्या डाला, मुझे कुछ याद ही नहीं था। और मैंने फिर बाद में एक मैसेज पढ़ा, टीचर तुम्हारा पैसा जो बाकी था वो हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये वही मुसलमान पेरेंट है जिसने कहा था मेरा अल्लाह भी बड़ा है, लेकिन वो नहीं जानती उसके अल्लाह से बड़ा मेरा खुदा है, जो जीवित खुदा है। और प्रभु का वचन कहता है ना, तुम शांत रहो, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। वैसा ही था, प्रभु ने मेरी लड़ाई लड़ा और मेरा जो हक का पैसा था वो मुझे मिल गया। I got that money transferred in my account. This is the second testimony. तीसरी गवाही है मई के महीने में। मैं स्कूल में टीचर हूँ। मेरी मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने मुझे कॉल करके कहा कि शलाइन तुमको जॉब से निकाला गया है, तुमको नौकरी से निकाला गया है। तो जब मैंने वो बात सुना, मेरे पैरों के नीचे मेरी धरती है जैसे नई एकदम सरक गया, वैसा हो गया। आई गॉट अ शॉक। मैं एकदम से, मेरे आँख में भी आंसू आ गया, क्योंकि आप जानते हो इस सिचुएशन में नौकरी नहीं होना कितना बड़ी बात है। 1 मिनट के लिए मैं एकदम से हिल गई और फिर मैंने वो बात मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे मैडम ने कहा।
कि तुम नौकरी से निकाली गई हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, अपना प्रभु बड़ा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, डोंट वरी। उन्होंने बहुत एनकरेज किया, उन्हें प्रार्थना में भी रखा और मई का महीना ऐसा निकल गया। और जून के कुछ पहले हफ्ते में फिर से मेरे मैडम ने मुझे कॉल किया और कहा शलाइन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमको नौकरी से नहीं निकाला गया है, तुमको रखा गया है नौकरी पे। तो मैं फिर से शॉक हो गई खुशी के मारे। मेरी नौकरी प्रभु ने संभाल के रखा, मेरी नौकरी प्रभु ने बचाए रखा, क्योंकि प्रभु की भलाई मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, तो मेरी नौकरी सही सलामत रखा। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। वो थी मेरी तीसरी गवाही। चौथी गवाही है जून के महीने में, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे तो मेरी लड़की, जिसे भविष्यवाणी का गिफ्ट है, शी इज़ अ प्रॉफिट, गॉड हैज गिफ्टेड हर विद द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। हम प्रार्थना कर रहे थे और जैसे प्रार्थना खत्म हुआ तो कैरल ने कहा कि अपने डैडी से कहा, डैडी मुझे 12 और 18, 12 और 18 नंबर दिख रहा है। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि 12 और 18 नंबर क्या है। उतने में मेरे लड़के ने कहा, मम्मी तेरी सैलरी 12,000 है ना और डैडी का पगार 18,000 है। तो बोले हाँ बराबर वो ही है, मेरी सैलरी 12,000 है, डैडी का सैलरी 18,000। और हमने वो बात को हम भूल गए, वी जस्ट फॉरगॉट। हमें ऐसा लगा प्रभु ने 12 और 18 दिखाया, यही है शायद, और हम उस बात को भूल गए। और कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों के बाद मेरी पड़ोसी आके बोली कि भाई राशन मिल रहा है, राशन कार्ड के ऊपर, क्या तुमने लिया? तो मैंने कहा नहीं लिया, हमको राशन मिलता नहीं है, ऐसा मैंने कहा। बोली नहीं, जाके देखो, राशन कार्ड में सबको राशन मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले चलो जाके देख लेते हैं। बोला राशन कार्ड पे एक्टिवेट हो जाएगा। बोला ठीक है। तो हम हमारा राशन कार्ड लेकर अगला दिन हम राशन लेने गए। मेरे प्रियो, यकीन मानो, जो प्रभु ने दिखाया वैसा ही हुआ। 12 किलो चावल हमें मिला, ना 11 किलो मिला ना 13 किलो मिला, बराबर 12 किलो चावल मिला। और उसी दिन, जैसे राशन के हम लाइन में खड़े ही थे, उसी दिन मेरे हस्बैंड के अकाउंट में 1800 रुपया डिपॉजिट हुआ। अननोइंगली 1800 रुपया डिपॉजिट हुआ उसी दिन, ऐसा भी नहीं अगला दिन। तो ये भविष्यवाणी प्रभु जो प्रभु ने जो आंकड़ा दिखाया 12 और 18, वो आंकड़ा पूरा हो गया। 12 किलो चावल और 1800 रुपया डिपॉजिट हुआ। सो गॉड इज रियली, व्हाट टू से नाउ, ही इज सो ग्रेट। वो इतना महान है कि शब्द नहीं कि प्रभु के प्रेम को वर्णन करे, इतना अद्भुत हमारा प्रभु है। तो ये थी मेरी चौथी गवाही। पांचवी गवाही है अगस्त के महीने में। वो अगेन एक मिरेकल मनी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। सो गॉड इज रियली ब्लेस्ड अस इन दिस लॉकडाउन। कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ से हेल्प आ ही जाता था। जिस तरह प्रभु ने एलिया को खिलाया, उस तरह प्रभु ने पूरे लॉकडाउन में मुझे और मेरे परिवार को खिलाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली की बात है, मेरी लड़की को, जो लॉकडाउन था ना, बच्चे लोग घर में कैद हो गए थे, तो एकदम से बोर हो गए थे, कहीं आना जाना नहीं, कहीं नहीं जा सकते थे, सारा वैकेशन घर में ही उनका। तो वो एकदम से पेड़ाप हो गए बच्चे। तो मेरी लड़की हमेशा बोलती थी मुझे दिसंबर के पहले, क्रिसमस के पहले मुझे कहीं तो जाना है। तो मैं भी वो बात को सुन के, अभी कहाँ जाएंगे, लॉकडाउन है, पर वो बोलती थी मुझे क्रिसमस के पहले कहीं तो जाना है, वॉन्ट टू गो समवेयर बिफोर क्रिसमस। ठीक है। और ऐसा हो गया कि अभी दिसंबर क्रिसमस के पहले ही मेरी बड़ी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि अरे मैं गोवा जा रही हूँ
मैं केरल को लेके जाती हूँ। तो मैं भी थोड़ी सी शॉक हो गया, अचानक गोवा। तो वो बोली थोड़ा लड़कियों गर्ल्स का प्लान है, सारे गर्ल्स जा रहे हैं तो भेज दे उसको। तो मैंने कैरल को पूछा क्या तू जाएगी, तो उसने तुरंत हाँ कहा, हाँ मैं जाऊँगी। और उसने ही आके मुझे बताया, मम्मा देख मुझे क्रिसमस के पहले बाहर जाने का था और प्रभु ने मेरी इच्छा को पूरा किया। तो देखिए प्रभु कितना अच्छा है, वो बच्चों की इच्छाओं को भी वो जानता है। दिल से मांगा हुआ इच्छा, दिल से की हुई प्रार्थना प्रभु सुनता है। और जैसे वो चाहती थी वैसा हो गया। वो गोवा घूम के आई 3-4 दिन। तो प्रभु को मैं सारा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उसे गोवा घुमाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु को देती हूँ। और मैं और भी बहुत सी बातें मेरे प्रियो, पर मैं एक बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। गए 31 महीने में या 31 दिसंबर को 2020 में, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताना चाहती हूँ। और मैं शर्मिंदा, आई विल नॉट फील अशेम्ड ये बताने में कि मेरे हस्बैंड टाइगो परेरा एक बहुत बड़े चेन स्मोकर थे। मैंने कहा थे, ही वॉज अ चेन स्मोकर, बहुत शराब पीते थे। पर प्रभु ने पूरी तरह से उनको चंगाई दिया है, उनको डिलीवर किया है, छुटकारा दिया है। आज 1 साल 1 दिन हो गया है। फुल 1 year 1 day he has not touched the cigarettes, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। He was a heavy smoker, 4 पैकेट्स अ डे। कलिसिया में भी जब भी जाते थे तो आधा टाइम बाहर जाके वो स्मोक करके आते थे। इतना शैतान ने जकड़ लिया था, पर प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया, इस सारे बातों से छुटकारा दिया है और हमारे परिवार को आशीषित किया है। और आज वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, एंड गॉड इज यूजिंग हिम माइटिली। मैं जानती आने वाले दिनों में भी प्रभु उनको और इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी उनकी जो कॉलिंग है ऑर्गेनाइजर का, प्रभु उनको उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम विश्वास से, मैं आज कन्फेस करती हूँ कि आने वाले महीनों में हम बड़ी सभा अरेंज करने वाले हैं, when he is going to speak and he himself will personally testify the name of the Lord। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। मैंने बहुत कुछ कोशिश किया मेरे प्रियो, डॉक्टर के पास लेके, गोलियाँ खिला के, बहुत कोशिश किया कि मैं बदलूं उनको, पर मैं हार गई। पर मेरा यीशु मसीह जीता और मेरा खुदावन ने मेरे हस्बैंड को, टाइगो परेरा को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और आज वो एक नम्र इंसान बन गए, एक खुदा के बेटे बन गए, खुदा की सेवकाई करने के लिए प्रभु उनको तैयार कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरी प्रिय। जैसे मैं और एक मेरे गवाही बताना चाहती हूँ। मेरे सोसाइटी में एक, मेरे आगे वाले सोसाइटी मतलब बी विंग में एक ऐसा आदमी था जो हमेशा गाली गलौज करता था, हमेशा दारू पी के, शराब पी के गाली गलौज करता। तो मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि मेरा घर काफ़ी उसके सामने ही है और वो गाली हमारे कान तक आती थी, मेरे बच्चों के कान तक पड़ती थी। तो मुझे बहुत खराब लगता था। बीवी को मारना, बच्चों को गाली देना बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु या तो उस इंसान को बदल दे या तो फिर उसको इस सोसाइटी से निकाल दे। ये मेरे एक दिल की इच्छा थी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि गलत किया, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो गालियाँ जो देता था मुझे पसंद नहीं था। तो मैं हमेशा, इट वॉज माई प्रेयर, और मेरे प्रेयर में एक रिक्वेस्ट ही था प्रभु के सामने कि प्रभु इस इंसान को मेरे नज़रों के सामने से निकाल दे। मेरे बच्चों के कान तक वो गालियाँ आती है, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा हो गया कि प्रभु ने उसे इस 2020 से गायब कर दिया। वो पूरी तरह से वो सोसाइटी से निकल गया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जानते हैं उसके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुने, इसके लिए धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती कि बहुत जल्द वो इंसान बदलेगा, मैं जानती हूँ।
मैं प्रभु को सारा गौरव देना चाहती हूँ, सारी महिमा देना चाहती हूँ। पूरे 2020 ने प्रभु ने सही में हम सबको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर भलाई है, हमारे ऊपर प्रभु की करुणा है। वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन हमारे जबान में है। डेथ एंड लाइफ इज इन द पावर ऑफ आवर टंग। हम इस जबान से जो कहते हैं, इस मुंह से जो अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, वो होता है। तो मेरे प्रिय, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कीप कन्फेसिंग। जैसे सुबह को आप उठेंगे, प्रभु के उस मेहरबानी को, प्रभु की इस भलाई को कन्फेस कीजिए। कीप सेइंग कि प्रभु तेरी भलाई, योर फेवर इज इन द वर्क्स ऑफ माई हैंड, योर फेवर इज इन माई फीट। आप जानते हो, जैसे यूसुफ, जोसेफ पॉटीफर के घर पे गया था, पॉटीफर आशीष हो गया। क्यों? यूसुफ के कारण, जोसेफ के कारण। वो जोसेफ आप और मैं हैं। हम जिस घर में जाएंगे उस घर में आशीष आएगा। जहाँ पे झगड़ा चालू है और आप वहाँ पे पहुँचोगे तो वो झगड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु की भलाई है। आपका बॉस अगर आपका दुश्मन है, डोंट वरी, प्रभु आपके दुश्मन को आपका दोस्त बनाएगा। नहीं चाहते हुए भी वो बॉस आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देगा। नहीं चाहते हुए भी आपका वो बॉस, आपकी मैडम आपसे अच्छी बातें करेगी, आपकी भलाई में, आपके फेवर में बातें करेगी, क्योंकि प्रभु की भलाई आपके ऊपर है। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु की उस भलाई को एवरी डे कन्फेस करना है, हर एक दिन कहना है, Jesus, let your favor be upon me, upon my children, upon my husband, upon my wife, upon my parents. हमको हर दिन प्रभु की उस भलाई को मांगना है, कन्फेस करना है, बोलते रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आपको हर दिन कहना है, but I am blessed, I am highly favored by the glory of God, I am crowned with the glory of God। आपको हर दिन कहना, मैं आशीषित हूँ। आपको पॉजिटिव बातें कहना है। You have to keep saying the positive things. There is lot of negativity। अभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना 2 आया है, स्ट्रेन आया है, ऐसी ऐसी बातें आई है। नो प्रॉब्लम, जब तक प्रभु की भलाई आपके ऊपर है, एक वायरस भी आपको छू ना सकेगा, एक ऐसी डिजीज या कोई बीमारी आपको छू ना सकेगा। पर आपको क्या करना है? आपको कहना है कि प्रभु की भलाई मेरे ऊपर है, प्रभु की करुणा मेरे ऊपर है, प्रभु का दया में, उसका प्रेम मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। सुबह को जब आप उठेंगे और रात को जब आप सोएंगे, आपको कहना है, रात में आपको कहना है, धन्यवाद प्रभु, तेरे भलाई के कारण मेरा आज का दिन अच्छा गया, तेरे करुणा के कारण आज मेरा दिन खुशी से था। आपको सुबह शाम प्रभु की भलाई के लिए मांगना है। और विश्वास रखिए मेरे प्रियो, वो बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड। ही नेवर स्लीप्स, ही नेवर स्लम्बर्स। वो कभी सोता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है। His eyes is always over his children। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो, मैं इस सेशन को मैं प्रार्थना के साथ बंद करना चाहूँगी और आने वाले सेशंस को, जो बैक टू बैक सेशंस है, उसके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। तो लेट्स लुक अपॉन द लॉर्ड इन प्रेयर्स। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के शाम के लिए प्रभु जी। ये पहला दिन जनवरी का 2021, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हो। आपने यहाँ तक हमें लाया है प्रभु जी, आप आगे भी लेके जाएंगे प्रभु। आपके भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ लॉर्ड, वी प्रे दैट द
Let your favor be on the works of our hand. Let your favor be upon our feet. Let your favor be upon our family, Father God. Let your favor be upon our jobs. Let your favor be upon our property. Let your favor be upon our possessions. Let your favor be upon our finances. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We praise your name, Father. We worship your name, Lord Jesus. Father God, I pray for this session today. Thank you for your grace. Thank you for all the testimonies that you gave us in this lockdown, Father. Thank you, Master. Father God, I pray for the upcoming sessions, all the pastors and their families, Lord God. Bless them. Bless them, Lord Jesus. Whatever they will speak, let it be for your glory, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba, Father. Thank you, Master God. Worship your name, Lord Jesus. I ask all this prayer in Jesus' mighty name. Amen. मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि विश्वास से आगे बढ़ते रहना. सिचुएशन जो भी है, just unlook. हाँ, yes, but we need to take the protocols. जो भी precautions है, विश्वास से तो चलना है, पर ऐसे नहीं कि विश्वास से तो हम मास्क नहीं पहनेंगे, विश्वास से तो हम सैनिटाइज नहीं करेंगे. नहीं, हमें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलना है, पर हाँ, विश्वास के साथ चलना है. और हम ये विश्वास को लेके ये पूरा 2021 को बिताएंगे और प्रभु की कार्य को आगे लेते जाएंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Shalom. Thank you.